Welcome you all on the digital platform of Billabong Inspire series. On behalf of Billabong High International School, we would like to thank all the parents for their support and work towards our school. Billabong Inspire series initiative will bring together working parents from various fields of expertise. They will share their life experiences, which will help motivate and inspire the students towards achieving their goals. One of the few bonds that we choose to create in a lifetime is friendship. Friends are the family who are bound to us not by blood but by love and affection. Nurturing this special relationship, Friendship Day is celebrated every year on the first Sunday of August. BHIS wishes everyone Happy Friendships Day. BHIS strongly believes in the core values which inform your thoughts, decisions, and actions and help you align your career or life path to what's important to you. They are the essential foundation in finding your life purpose because they remind us and others who we truly are. BHIS core values are diligence, service, compassion, resourcefulness, commitment, and integrity. Billabong Inspire series is all geared up today for an interesting and enlightening session with our speaker, Mr. Amit Narang, who will be taking us through his life journey. Mr. Amit Narang is a sports teacher with over 11 years of experience. He is a D license course holder and second class referee of Uttar Pradesh Football Association. Currently, he is appearing BP Ed. He has conducted district level, state level, and national level tournaments as a referee many times. He has also worked as the coach of under 16 girls, under 19 girls, and under 21 boys Kanpur football team. He has been a part of under 16 three times, under 19 three times, under 21 two times, and senior football team for Kanpur. Apart from this, he has also played state Olympics twice and under 19 UP. Being a part of football team, he has participated in under 19 national championship, played all India tournament many times and got the privilege of leading Kanpur team many times. We would now like to welcome our guest speaker for the day, Mr. Amit Narang. Sir? Yeah, just 1 second. Actually, sir has some network issue. He is here. एंड थैंक्स टू प्रीति कि उन्होंने भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हूं और उनको अपनी जर्नी के बारे में उनसे कुछ बातें शेयर करूंगा. थैंक यू वंस अगेन प्रीति मैम. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Wow, sir. I have got so inspired to see your passion and commitment towards our school and work. Sir, I always enjoy a lot in outdoor co-curricular activities. The way you plan the activities for all of us, it gives us a chance to explore so many activities. Sir, we would like to ask you a few questions related to your journey and to your work. Also, students can ask their questions by writing in the chat box. So firstly, I would like to ask, आपको sports में interest कैसे आया?
request everybody to bear with us. I guess there is some network glitch at the end. May I audible? Your voice is echoing. Saiba, may I audible? Yes, sir, you are audible. Your voice is Yes, echoing. yes. Sorry, वो network issue बेटा इस वजह से थोड़ा सा problem हो गई. Sir, I would like to repeat my question. My हाँ, question sure. is, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे आया? मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बेटा मेरे को मेरे परिवार से ही मिला. मेरे फादर क्रिकेट के अच्छे प्लेयर थे और टेबल टेनिस के भी अच्छे प्लेयर थे. और मेरे चाचा कैरम के नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और आज कानपुर के मोस्टली ज्यादातर लीडिंग स्कूल में एज अ कोच जॉब कर रहे हैं. मेरे बड़े पापा फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी के साथ यूपी फुटबॉल टीम के मैनेजर भी रहे हैं और एज अ सेलेक्टर भी रहे हैं. तो ये इंटरेस्ट मेरे को मेरे परिवार से ही मिला है. वाह सर. सर, आपने अपनी स्पोर्ट्स जर्नी कैसे शुरू की थी और वह एक चीज क्या थी जिसने आपको इंस्पायर किया बिलाबोंग स्कूल आने के लिए? स्कूल के टाइम से ही मेरे को स्पोर्ट्स पसंद थे. मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि जिसमें मैं उसमें अपना फ्यूचर बना पाऊँ. तो मेरे फादर ने मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मुझको डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सुपरविजन में ग्रीन पार्क स्टेडियम में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और मेरा एक कोई जिससे मैं इंस्पायर हुआ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ किस तरीके मैं बिलाबोंग में आया. बिलाबोंग से डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से मेरे पास कॉल आया एक कि बिलाबोंग स्कूल में फुटबॉल कोच की वैकेंसी है, क्या आप इंटरेस्टेड है मतलब वो इंटरव्यू देने के लिए. तो मैंने कहा हाँ दे दूंगा. उस वक्त मैं एज अ कोच बहुत स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ था, कुछ स्कूलों के साथ, और एज अ रेफरी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और यूपी एसोसिएशन के लिए वर्क कर रहा था. मैचेस खिलाता था, उनके मैचेस कंडक्ट कराता था. मैं बिलाबोंग आया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. मेरे को 3 दिन के लिए डेमो के लिए बोला गया. उस डेमो पीरियड में मैंने देखा कि बिलाबोंग में मतलब रोज एक्टिविटीज होती हैं बच्चों के लिए, मतलब उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं और डेली एक्टिविटीज हो रही हैं. ये चीज मैंने किसी अदर स्कूल में आज तक नहीं देखी थी. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंस्पायर हुआ मैं इससे, और मैंने अपनी ऊपर वाले की दया से और मैनेजमेंट को कुछ अच्छा लगा होगा, मेरे को सिलेक्ट किया गया. लेकिन जैसे जैसे मैंने बिलाबोंग में अपना समय बिताया तो मेरे को बिलाबोंग के बारे में और भी बहुत सी चीजें पता चली. जैसे कि बिलाबोंग के बारे में मेरे को कि यहाँ बच्चों के लिए तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था. और यहाँ पे आपके ऊपर मतलब अगर आप अच्छा वर्क करते हो, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको और ज्यादा लाइबिलिटीज मिलती हैं और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल देता है. जैसे उन्होंने मेरे डिवोशन को देखते हुए, मेरे हार्ड वर्क को देखते हुए और मेरे डेडिकेशन को देखते हुए उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स हेड भी बनाया, जो आज मैं हूँ. वाह सर, आपने अपने बच्चों के लिए बिलाबोंग क्यों चुना? मैं पिछले 7-8 साल से बिलाबोंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ. यहाँ रह के मैं बिलाबोंग के बारे में, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मोस्टली ज्यादातर चीजें तो जानते हैं. बिलाबोंग बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सबसे बड़ी बात जो मतलब अदर स्कूलों से डिफरेंट करता है, जैसे कि यहाँ का करिकुलम, नो डाउट वो सभी जानते हैं कि बिलाबोंग का करिकुलम वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम इन यूपी. बहुत अच्छा करिकुलम है, बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है. उसके साथ साथ बिलाबोंग में फुटबॉल क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को, एकेडमी को और को करिकुलर एक्टिविटीज को बिल्कुल इक्वल रखा हुआ है. यहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है करने को. बच्चे चाहें तो अपना मतलब फ्यूचर में
इतनी स्किल्स हैं यहाँ पे कि कोई एक स्किल को पकड़ के वो आगे अपने फ्यूचर में उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, इसलिए। थैंक यू सर। और इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, इस पेंडेमिक के दौर पे जिस तरीके मैनेजमेंट और टीचर्स वर्क कर रहे हैं, जितना भी उनका अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू मैनेजमेंट कि आप जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे को लगता है कि जितने भी पेरेंट्स बहुत खुश होंगे बिलावों के इस। थैंक यू सर। सर, आपको क्या चीज अपने काम को मोटिवेट करती है और आपके आइडियल्स कौन हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे आइडियल मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को गिव अप नहीं करने दिया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि मैं फ्रस्ट्रेट होकर चीजों को छोड़ना चाहता था, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा मेरा बैक किया। उनके लिए तो मैं जितना भी थैंकफुल रहूं। उसके बाद मेरे गुरु श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने मेरे को फुटबॉल सिखाया। आज मैं जितना भी फुटबॉल खेला हूँ सब उन्हीं की देन है, उनका आशीर्वाद है कि इतने अच्छे लेवल तक मैं फुटबॉल खेल के आया। तीसरा मेरे आइडियल मैं कह सकता हूँ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और लियोन मेसी हैं। उन्होंने मेरे को ये सिखाया कि अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो वो आपकी आलोचना नहीं कर रहा है, वो आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप उसको उसी तरीके से जवाब दो। और वो आप जवाब कैसे दे सकते हो? परफॉर्म करके। आप परफॉर्म करोगे तो अपने आप ही सबके जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपने आप खुद चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। तो और रही बात कि हमारा प्रोफेशन हमें क्या सिखाता है, हमारा प्रोफेशन हमें मोटिवेट करता है कि हारने के बाद भी आपको कभी लगन नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने काम के प्रति निरंतर प्रयास करना चाहिए। और हार और जीत ये पार्ट ऑफ द गेम है। हार आपको बहुत कुछ सिखाता है। When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up I can be.
Wow, what a nice video. थैंक यू सर। अब हम आपके को करिकुलर अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। एज अ प्लेयर मैंने अंडर 16 3 टाइम्स खेला है। मैं मतलब 14.5 years में मैं अंडर 16 प्ले करने गया था। और अंडर 19 मैंने 3 टाइम्स खेला है। अंडर 21 मैंने 2 टाइम्स खेला है। सीनियर्स तो बहुत बार खेला है सीनियर्स। और यूपी ओलंपिक मैंने 2 बार खेला है। और ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेले हैं। और अंडर 19 नेशनल खेला है मैंने। और उसके बाद एज अ कोच मैंने अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21 टीम्स का कोच रहा हूँ। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं जितने भी इनके डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जितने भी कैंप्स लगते हैं उसमें मैं एज अ असिस्टेंट कोच और हेड कोच रहा हूँ। और आज कानपुर के सबसे अच्छे स्कूल में एज अ स्पोर्ट्स टीचर वर्क कर रहा हूँ। अमेजिंग सर, आपके स्कूल टाइम में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था और क्यों? स्कूल टाइम में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैं ये कह दूंगा स्पोर्ट्स था। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही मैं कहूँगा पीएड था। क्योंकि पीएड से मैंने अदर्स गेम के बारे में मेरे को बहुत सी नॉलेज मिली, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जाना, उनके लॉस के बारे में जाना, जो मेरे प्रोफेशन में मेरे को काम हेल्प करता है। और इसलिए पीएड कह सकता हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खेला बहुत है और अच्छे लेवल तक खेला। थैंक यू सर। हम ये भी जानना चाहते थे कि इस पैंडेमिक ने आपके काम को कैसे इफेक्ट किया है और प्रॉब्लम से आपने कैसे डील किया है। अगर सच कहूँ तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ग्राउंड में रेगुलर मैं बच्चों के साथ कांटेक्ट में था, कनेक्शन था उनसे, उनको रोज फिजिकली हर चीज सिखाता था, प्रैक्टिकली हर चीज बताता था। एकदम से ये कोविड आया तो इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन मैनेजमेंट की हेल्प से मेरे को मैनेजमेंट ने बड़ा हेल्प किया। उन्होंने मेरे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जिसको मेरे को यूज टू होने में उसमें भी समय लगा। जूम्स और टीम्स में मैंने बच्चों को चीजें बताई। फिर धीरे धीरे बच्चों को मैंने लिंक शेयर किए, बच्चों ने अपने एक्टिविटीज रिलेटेड मतलब अपनी फिटनेस से रिलेटेड वीडियो शेयर किए जिसको मैंने सोशल मीडिया में अपलोड किया। बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। धीरे 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 मैं उसका यूज टू हुआ। फिर हम लोग ने वर्चुअल स्पोर्ट्स डे कराया, जिसमें बहुत सारे, मोस्टली मेरे को तो लगता है शायद कि पूरे स्कूल ने ही पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इतने वीडियोज आए थे। बहुत अच्छी तरीके से वर्चुअल स्पोर्ट्स डे हुआ। और अब हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को फिटनेस से रिलेटेड चीजें बता रहे हैं, उसमें योगा करा रहे हैं, जुम्बा करा रहे हैं और स्ट्रेंथ कंडीशनिंग करा रहे हैं, जो बच्चे जिसको एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। बच्चों का भी बड़ा सपोर्ट रहा। और में भी बच्चे अपने वीडियोस बना के मेरे को देते हैं, शेयर करते हैं, जिसको मैं स्कूल के सोशल मीडिया पेज में अपलोड करता हूँ। मैं जैसे बहुत से बच्चों को कॉल करता हूँ, सबके साथ नहीं हो पाता, मैं सबको कांटेक्ट पूरे स्कूल को तो एक साथ नहीं कर सकता हूँ। जो बच्चे डेली कर रहे हैं वो अपना वीडियो मेरे से शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, आप शौनिक सर को भेज सकते हैं, यूसुफ सर को भेज सकते हैं, या मेरे पर्सनल में भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, जिसको मैं स्कूल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेज पे अपलोड करूंगा। और आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां हो रही हैं उस वीडियो को देख के, कि आप उसमें आगे सुधार कर सकें। थैंक यू सर। सर, क्या आप हमें एक मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिस तरीके क्या कहते हैं दिमाग के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरीके शरीर के विकास के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब और खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आज तो कहा जाता है पढ़ो, अगर खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मीराबाई चानू, अभी उन्होंने सिल्वर मेडल ओलंपिक में मिला है उनको। जैसे ही उनको ओलंपिक में मिला मेडल, मणिपुर गवर्नमेंट ने उन्हें 2 करोड़ रुपीस और उनको एएसपी की पोस्ट दी है। तो आप, अब ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर नहीं देख सकते, आप स्पोर्ट्स में भी अपना फ्यूचर देख सकते हैं और जरूर देखिए। लेकिन उसके लिए आप पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आप उस चीज के पीछे लग जाइए, ठीक है। और जो बच्चे जो नहीं देखते हैं
स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर किसी अदर चीजों में देखते हैं, तो उनके लिए भी स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हो तो मेंटली आप अलर्ट रहोगे। और हमारे जैसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इनको भी आगे स्पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। रीजन क्यों पड़ेगी? अगर आगे ये किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा ना, तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज आपको छूट मिलेगी। ये चीजें आप लोग समझो और स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से ऐसा, मतलब आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। आप सोच नहीं सकते स्पोर्ट्स क्या है। अगर स्कूल का भी यही फॉर्मेट है, आप देखिए कि मॉर्निंग में आपको स्पोर्ट्स कराया जाता है कि आप पूरे जो आपका मेन क्या कहते हैं, पूरी तरीके से आप फ्री होके जाइए और पूरी तरीके से पढ़िए। फिर आपको दोपहर में आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज दी जाती हैं कि आपने पढ़ के जो आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा है, उस स्ट्रेस लेवल को फिर कम करते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए। उसमें अपना फ्यूचर अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। Thank you, sir. Now we would like to read the questions from the chat box. The first question says, Sir, may you please tell me about your most challenging experience while working with children? चैलेंजिंग एक्सपीरियंस तो मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक अपनी क्वालिटी होती है। हर बच्चा स्पेशल होता है। कुछ लोगों को कुछ बच्चों के अंदर कोई चीज को ऑब्जर्व करने के लिए क्षमता जल्दी होती है, वो चीजों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। और कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ लोगों के अंदर टाइम लगता है थोड़ा सा ऑब्जर्व करने। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज कर नहीं सकते। जिस तरीके स्कूल में आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ने आप जाते हो तो आपको पहले स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती है, स्लिपिंग लाइन सिखाई जाती है, स्ट्रेट लाइन सिखाई जाती है। उसके बाद फिर डॉट डॉट बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको हाथ पकड़ के आपके पेरेंट ए बनाना सिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे परफेक्शन आता है तो आप ए बनाना सीख जाते हैं। उसी तरीके कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे वहां तक। मगर क्या है कि आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी उसको पूरा करने के लिए। So next question was by Kavya Dayal. आपके other passions क्या है except sports? जैसे मैं स्ट्रेस में ज्यादा होता हूँ तो मैं म्यूजिक सुनना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। म्यूजिक मेरे को सिंगिंग करना भी आता है। मेरी आवाज ठीक नहीं है लेकिन मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। बस और अदर्स गेम जैसे क्रिकेट खेलना मेरे को बहुत पसंद है। क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानता भी हूँ। क्रिकेट भी मैं अंडर 14 मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का प्लेयर भी रहा हूँ। अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट खेला है मैंने क्रिकेट में एज अ प्लेयर। और क्रिकेट के बारे में भी बहुत सी नॉलेज है। क्रिकेट खेलना भी मेरे को बहुत पसंद है और फैमिली के साथ रहना तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। Sir, वैष्णवी सिंह from 4ST. आपकी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कौन सी है? मेरे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर 19 नेशनल। क्योंकि दरअसल क्या हुआ था कि अंडर 19 जब मैं पहली बार गया था ट्रायल देने तो मेरे को कैंप से ही लौटा दिया गया था। हुआ क्या था कि मेरा नाम आया ट्रायल के लिए, अंडर 19 नेशनल लेवल कैंप के ट्रायल के लिए मेरा नाम आया, जिसमें 120 लोगों 120 प्लेयर्स थे। उसमें से मेरे को 30 में चूज किया गया और 30 में मेरा 22 दिन का कैंप लगा बनारस के सिगरेट स्टेडियम में। और वहां पे मैंने पूरे 22 दिन बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी और मेरे को लग रहा था अंदर से, मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मगर क्या हुआ कि मैसेज आया टीम की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से कि आपको सब लोग जितने भी प्लेयर्स हैं सब स्टेशन पहुंचे। हम लोग स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन में टीम अनाउंस करी और कहा कि जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो ट्रेन में जाएं और जितने लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो वापस, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं आपको सच कहूं, मैं बहुत रोया, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि इतने दिन कैंप किया और इतना मेरे को लग रहा था कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं गलती से किसी गलत ट्रेन में चढ़ गया और आना उसको कानपुर ही था, लेकिन उसका रूट जो था वो थोड़ा लंबा था। जो सफर मेरे को 6 घंटे 7 घंटे में पूरा करना था वो मैंने 14-15 घंटे में पूरा किया। मेरे पेरेंट्स बड़े ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं घर आके लेटा रहा। मैं कितने दिन 10 15 20 25 दिन फुटबॉल खेलने भी नहीं गया, ना प्रैक्टिस करने गया। मेरे पेरेंट, मेरे फादर, मेरे ब्रदर्स मेरे को बहुत समझाते थे कि गिव अप नहीं करो, खेलो, आगे खेलो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, कुछ कमियां रह गई होंगी, अगली बार जाओगे। मेरे कोच आए घर में समझाने।
लेकिन मैंने फिर अपने आप को उस हिसाब से फिर पूरा तैयारी करी और नेक्स्ट ईयर फिर मैं गया, ट्रायल दिया मैंने, फिर मैं कैंप में हुआ और उसके बाद मैं अंडर 19 नेशनल खेल के आया। सर आपने फुटबॉल को ही क्यों कोच किया, कोई और स्पोर्ट्स को क्यों नहीं? अब इंटरेस्ट हो सकता है कि फुटबॉल मेरे को पसंद है और कहते हैं कि जो चीज आपको बहुत अच्छी आती है अगर उसी चीज को प्रोफेशन बना लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पूरी लगन के साथ, आप पूरी डेडिकेशन के साथ सिखाएंगे बच्चे को। तो इसीलिए आज हम अगर ग्राउंड पे उतरते हैं तो आज भी हम यही सोच के उतरते हैं कि नहीं, मेरे को बच्चों को अच्छी चीजें सिखानी है, अच्छा फुटबॉल सिखाना है, वो उस लेवल तक खेल के आए। और स्कूल के बहुत से बच्चे हैं जैसे ईशान सूटवाला, मतलब ये मेरे को प्राउड फील कराते हैं, अब्दुल्ला सलेह और हमजा, जो मेरा पहले बैच का था प्लेयर, हमजा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। और भी बहुत से बच्चे हैं, फहाद, जकरिया, प्रथम गुप्ता, ये सब जब खेलते हैं तो मेरे को ये प्राउड फील कराते हैं कि मैंने इनको सिखाया है तो ये आज उस लेवल का खेल रहे हैं। ईशान सूटवाला आज गोवा में, उसका वीडियो जब गया तो गोवा में वो आज खेल के आया तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि नहीं, अरे मेरा बच्चा खेल रहा है। और यही टीचर चाहता ही यही है। टीचर क्या चाहता है? यही चाहता है, वो आपको अगर अच्छी चीज सिखाए, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप अगर अपना नाम भी अगर रोशन करेंगे ना तो उसको बहुत खुशी होती है, जिस तरीके पेरेंट को होती है। सर अगला क्वेश्चन महिमा फ्रांसिस फ्रॉम 4SD। अच्छी हेल्थ के लिए फिटनेस कैसे मेंटेन रखें? और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ देखिए फिजिकल एक्टिविटीज या आप फिजिकल एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स ही नहीं है, उसके साथ साथ आपको आपकी डाइट भी है। अगर 40% हम स्पोर्ट्स को देंगे या फिजिकल एक्सरसाइजेस को देंगे, 40% हम डाइट को देंगे और 20% हम रेस्ट को देंगे। आप डाइट किस हिसाब से ले रहे हैं? आप पता चला आप वर्कआउट तो बहुत कर रहे हो उसके बाद लेकिन जंक फूड खा रहे हो, तो वो तो आपके लिए फायदा नहीं है ना उसका। तो आप अपने जो आप डाइट प्लान है उस डाइट प्लान को अच्छा बनाइए और हेल्दी फूड खाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जंक फूड मत खाइए आप, लेकिन जंक फूड एक डे डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इसी दिन खाना है, बस उसके टेस्ट के लिए, क्योंकि जंक फूड आपके लिए ठीक नहीं है। हेल्दी फूड खाइए। और रही बात, एक अपने टारगेट सेट करिए और कोई भी चीज करने के लिए जल्दबाजी मत करिए कि जैसे सपोज करिए कि आपने आज 20 पुशअप्स किए हैं, तो आपने सोचा अरे सर 20 पुशअप कर रहे हैं। आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपने आप करिए कि कितने कर सकते हैं। आपके अंदर अगर 10 की है कि कैपेबिलिटी की 10 हम पुशअप कर सकते हैं तो आप 10 करिए, दूसरे दिन 11 करिए, धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाइए तो आप देखिएगा। और अपने रूटीन में उसको लेके आइए, ये नहीं कि आज कर लिया है कल फिर गैप कर दिया, परसों गैप कर दिया, ऐसा नहीं। आप उसको अपने रूटीन में रखेंगे, डेली सोचेंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल फिजिकली फिट रहेंगे। बिल्कुल। सर आपका मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या था जब आप चिल्ड्रन के साथ वर्क करते हैं? मैं सच कहूं तो जब मैं पहली बार बच्चों का ट्रिप लेके गया था, बच्चों का ट्रिप लेके गया था स्कूल के बिलाबोंग के भोपाल, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो कि ट्रिप में मेरे को बच्चों को लेके जाना, उनको केयर करनी है और अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि उस वक्त हम ही उनके पेरेंट हैं। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। जो स्कूल ने अगर मेरे को कहा कि ये जिम्मेदारी दी तो उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। वो मेरे को बहुत खुशी हुई कि बच्चे बिल्कुल गए पूरी तरीके से, फुल उन्होंने एंजॉय किया और अच्छी तरीके से घर वापस आ गए। पेरेंट भी बड़े खुश थे कि नहीं, बच्चों को कहीं पे भी किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक्सपीरियंस मेरे को सच कहें तो मिला है आप ही के स्कूल से, अपर्णा मैम से मेरे को मिला है, अमन सर से मिला है, आयुष से मिला है, इन लोगों से मिला है कि मतलब किस तरीके से बच्चों की आप केयर करते हैं। और रही बात कि बच्चों के जो ट्रिप लेके जाना, जब मैं पहली बार अंडर 16 गर्ल्स का ट्रिप ले अंडर 16 गर्ल्स प्लेयर्स का उनको खिलाने लेके गया था बाहर बरेली, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। वो क्या टास्क था कि वो पहली बार मैं किसी गर्ल्स टीम को लेके जा रहा था, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो भी और वहां पे हम लोग फाइनल जीत के आए थे। हम लोग ने बनारस को 5-1 से हराया था। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब आज इसको कह सकते हैं कि जीत थी कि मतलब हमने एक यूपी की वन ऑफ द बेस्ट टीम को हम लोग ने 5-1 से हराया। चैलेंजिंग था, लेकिन धीरे धीरे अब आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, आप चीजें आपके लिए, आप जिसके यूज टू हो जाते हैं तो आपके लिए वो चीजें इजी हो जाती हैं।
Sir, I have a question. What keeps you persistent? सॉरी, सर, आपको क्या चीज ऐसी है जो आपको persistent रखती है? सर, ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती है, मतलब मेरे को मेरे को सेल्फ बिलीव मेरे ऊपर कह सकते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन कह सकते हैं, क्योंकि एक प्लेयर के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और उसके अंदर सेल्फ बिलीव होना उसको बहुत जरूरी होता है कि नहीं ये चीज मैं कर ही सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अगर जिस जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि ये चीज मेरे से नहीं होगी तो समझ लीजिए तो उस दिन सच में नहीं होगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, उसको चेस कर उसके पीछे जाएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखिएगा खुद वो चीज पूरी होगी। यही लगता है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम ये नहीं कहते कि ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन हाँ मेरे को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है कि मैं डिसिप्लिन में रह के मैं हर चीजें कर सकता हूँ, और होना भी चाहिए। प्लेयर के अंदर ये चीजें बहुत जरूरी है। Thank you, sir. Now it's time for some fun element. It's quiz time. Students will get 10 seconds for each question and they're requested to write their answers in the chat box. Asian Games were last held in India. And your options are 1982, 1986, 1972, and 1990. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is 1982. The next question is, who among the following is known as Flying Sikh of India? 10, Your options 9. are Kapil Dev, P.T. Usha, Milkha Singh, and Joginder Singh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is Milkha Singh. In which stadium Tendulkar completed his 100th century? Your options are Eden Garden, Shere Bangla Stadium, Firoz Shah Kotla Ground, or none of the above. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is B, Shere Bangla Stadium. The next question is, who is the first Indian woman to win an Asian Games gold in 400-meter run? The options are M.L. Valsamma, Kamaljeet Sandhu, P.T. Usha, and K. Maleswari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is option B, Kamaljeet Sandhu. Given by Kavya Dayal. Who was India's first football captain? Your options are P.K. Banerjee, Shailen Manna, S.C. Goswami, and Talimirane A.O.
The correct answer is Tulimarine AO, which was given by Pranavi Gupta. The next question is, who was the first president of BCCI when it was formed in December 1928? Your options are Ree Grant Groven, Anthony D. Mello, J.C. Mukherjee, or none of the above. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is option A, which is Ree Grant Groven. Again by Pranavi Gupta. The next question is, which animal represent in the mascot in Delhi Asian Games 1982? Your options are a tiger, an elephant, a lion, or a panda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, so hat trick in a row. The correct answer is an elephant, again by Pranavi Gupta. The next question is, who is the only and first Indian player to compete 6 Olympic Games? The options are Karni Singh, Randhir Singh, Leander Paes, Mahesh Bhupathi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is Leander Paes. By Vaishnavi Singh 4ST. Let's move to our next question. Who is the youngest grandmaster in India? Your options are V. Anand, Parimarjan Negi, P. Hari Krishnan, Conero Humphrey. And your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is Parimarjan Negi. The next question is, in basketball, how many players are there in each side? Your options are 7, 9, 5, or 6. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So we have a correct answer from Hera Khan 4RM, which is 5. The next question is, libero is related to which game? Your options are kabaddi, kho-kho, basketball, or volleyball. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have our correct answer by Kavya Dayal 5AA, which is volleyball. The next question is, who is the first recipient of Dronacharya Award in cricket? Options are Ramakant Achrekar, Des Prem Azad, Sunita Sharma, or none of the above. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The correct answer is B, which is Des Prem Azad. Coming to the next question. How many countries participate in Delhi 2010 Commonwealth Games? Your options are
52, 64, 71, or 32? Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have our correct answer from Mahima Francis 4ST, which is 71. Which game will be dropped from 2020 Olympic Games as declared by IOC recently? Options are kabaddi, wrestling, discus throw, or archery. The correct answer is B, which is wrestling. Here comes our last question. Who was the captain of the first Indian hockey team that participated in Olympics? Your options are Kishan Lal, Lal Bukhari, Dhyan Chand, Jaipal Singh. The correct answer is D. Jaipal Singh by Moin Talha. Many congratulations to all the winners. Wow, sir, I have got so inspired to see your passion and commitment towards the work, and I'm sure everyone must have enjoyed to know more about your journey with Billabong. Before we end the session, we have a challenge by Amit sir, his son, and his nephew. Students are requested to accept this challenge by recording their videos and sharing in the class group along with their feedbacks. Good evening everyone. I am Tarsan from grade 2FR. I am Gagan Singh from grade 1 TG. Are you ready to accept the challenge? Thank you everyone for doing the challenge. Our heartfelt gratitude to our founder and CEO, Mrs. Preeti Agarwal, for initiating such talks, which kindles in us the curiosity to explore more. We convey our heartfelt gratitude to our guest speaker, Mr. Amit Narang, for the dynamic talk. Thank you. Before ending the session, we will like to play our school song. It all just feels like a dream to me, to find a school so true. And I know it's all in make-believe when I picture a school like you. The one thing that I learned from you is that I can make my dreams come true. Someday when I wake up to find memories of Billabong in my mind, imagine how that could be. Imagine how that could be.
passion over ambition. In our minds we have rhythm, courage and humanity. What makes us Billabong high is we believe we can touch the sky. Billabong high, Billabong high, Billabong high, you know you can fly. Billabong high, you can touch the sky. Billabong high, Billabong high, Billabong high, you know you can fly. Billabong high, touch the sky. Your feedbacks and suggestions are the most important to us for raising the bar all the time. WhatsApp class group will remain open till 5:30 p.m. Parents and students are requested to share their feedbacks and suggestions in the class group. Thank you so much, everyone, to be a part of this Billabong Inspire series. We shall meet next week on 7th August 2021 at the same time with our next guest speaker, Dr. Ashish Mehrotra. Thank you. Thank you.